آواز آ رہی ہے میری؟ ذرا بتائیے گا کیونکہ میں نے ابھی ہینڈ فری لگایا ہے. ہیلو، اب آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا ذرا. جی چلو ٹھیک ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم براڈ کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، روزانہ براڈ کرتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کے عقائد اور نظریات آپ کو بتاتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر سے. ہم کوئی الزام نہیں لگاتے، جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ قادیانی کتابوں کے اندر سے آپ کو ان کے عقائد اور نظریات بتاتے ہیں. تو دوستوں سے گزارش ہے، جو دوست تشریف لا رہے ہیں وہ براڈ کو ذرا ڈبل ٹیپ کریے گا، ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں. ٹھیک ہے جی، ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. یہ دو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ لائیو کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. یہ پہلے کالر تشریف لائے ہیں، دیکھتے ہیں جی کیا سوال السلام کرتے ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد وعلیکم محترم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ صحت طبیعت اچھی ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں ہوں بھی سعودی عرب میں، اور اسپیشل جو ہے وہ حضور پاک کو آپ کا سلام عرض کی ہے. اور جعلی مبارک کے آگے آپ کے لیے یقین کریں کہ آنکھیں بھری ہوئی تھیں جس ٹائم پہ دعا کی ہے کہ آپ کے لیے کہ مفتی مبشر شاہ جو ہے وہ حضور آپ کی ختم نبوت کے اوپر پیرا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور قادیانیت کو جو ہے وہ الفاظ میں نہیں سمجھ آ رہا کہ کس طریقے سے میں بیان کروں، لیکن وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کی ہے کہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ یقین کریں کہ بہت بڑا کام ہے. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. الصلاۃ تو والسلام بس علیک اسی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ رسول وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے حضور کا ذکر خیر ہے اور جی آپ نے میرا سلام عاجز کا عرض کی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. نہیں مفتی صاحب یقین کریں، شکریہ کہہ کر آپ شرمندہ کر رہے اللہ ہیں. جو کام اکبر، آپ کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر، یقین کریں کہ اللہ اکبر. بہت آپ کے لیے یقین کریں کہ خصوصی حرم میں جو ہے وہ دعا کی ہے آپ کے لیے، ریاض الجنہ میں آپ کی ہاں صحت ہاں، یابی کے لیے واہ دعا کی ہے. واہ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ بس کیا اسی بات. طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنا مشن لے کے، میں یقین کریں کہ ادھر ہوں 12 گھنٹے میں ڈیوٹی کرتا ہوں، 12 گھنٹے بعد واپس آتا ہوں روم میں. تو روز نہ ختم نبوت ٹائمز کے اوپر روز میں آپ کی جو گھنٹے کی ہو 1.5 گھنٹے کی ہو، ہر روز وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ سن کے مدینہ اس کے شریف بعد ہوتے ہیں؟ سوتا ہوں. نہیں میں ریاض میں ہوتا ہوں، ریاض میں ہوں ریاض میں. میں ہوتے ہیں؟ اچھا اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلو پھر بھی یار بڑی بات ہے. ریاض کافی دور ہے، کوئی 1200 کلومیٹر تو تقریباً ہے. جی تقریباً 1001 کلومیٹر ہے مفتی صاحب، 1001 کلومیٹر کلومیٹر. تو پھر بھی چلو جی کوئی مہینے بعد، ہفتے بعد چلو حاضری کا موقع ملتا ہی ہے نا جی. تو جی جی بالکل ہمارے الحمدللہ. جیسے ہیں کہ جو تڑپ رہے ہیں کہ کاش حضور، جی کاش حضور، کاش حضور ہمیں بھی اجازت مل جائے جی. ایک بس ہم ہے کہ ہم یہ تو جو قسمت کی دور بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں. تو بڑی 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 جی سعادت بس ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے. یقین کریں اس دفعہ تو خصوصی جو میری جو خصوصی جو دعا تھی، اس دفعہ تو میں جب حرم میں گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا وہ
کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہیں ہوتی بالکل. یعنی کہ جو حرم ہے، حرم کے پاس جدھر حجر اسود ہے اس کے پاس ایک مخصوص سا ایک ایریا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس دفعہ میں نے دنیا کی کوئی دعا نہیں کی. ادھر جا کے میں نے صرف اور صرف ایک دعا کی ہے کہ یہ جو مرزا مسرور ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ اپنا نام نہاد خلیفہ مانتے ہیں، میں نے یہ دعا کی ہے کہ اس کو اللہ پاک تو ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے کہ یہ اپنے منہ سے اپنی زبان سے اقرار کرے کہ مرزا قادیانی کذاب تھا، دجال تھا، ٹھیک ہے، اور حقیقت سے جو ہے وہ ان کو آشنا کرے کہ دراصل حقیقت کیا تھی، ٹھیک ہے. کوئی نہیں، کہ یہ ہم کرتے ہیں حقیقت سے آشنا، ہم کرتے ہیں حقیقت سے آشنا انشاءاللہ، اور یہی کام ہے ہمارا، اور اسی کام کی قسم کھائی ہے، اور اسی کام کے لیے زندگی اپنی وقف کی ہے ہم نے. یہ عاجز کی جی ایک پرانی کتاب ہے قادیانی کلمہ، اور ہمارے بھائی، نام آپ کا کیا ہے؟ نام نہیں مجھے جی، یاد. میرا نام فیضان. فیضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت سے اللہ ان کو آشنا کر دے، تو ہم ابھی حقیقت سے آشنا کرنے لگے ہیں. قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لوگوں کو دھوکہ اور دجل اور فریب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو جی کلمہ تو ہم مسلمانوں جیسا ہی پڑھتے ہیں، جب ہم کلمہ مسلمانوں والا ہی پڑھتے ہیں تو ہم کافر کیسے ہو گئے؟ یہ اپنی عبادت گاہ جو ان کا مرزواڑہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بڑا سا لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اصل میں اس میں سازش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنی مساجد کے باہر کلمے نہیں لکھتا، اپنے گھروں کے باہر کلمے نہیں لکھتا. جب مسلمان کوئی تقریر کرتا ہے تو اپنے سٹیج کے اوپر کلمہ نہیں لکھتا. یہ کلمہ جناب دو بندے لکھتے ہیں. وہ دو بندے کون سے ہیں؟ ایک مرزا سینئر غلام قادیانی کا فالور مرزا مسرور، وہ جب تقریر کرتا ہے تو اپنے سٹیج پر کلمہ لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک مرزا جونیئر جہلمی جو کہ قادیانی عقائد اور نظریات کا پروموٹر ہے، وہ جب تقریر کرتا ہے تو اس کے کمرے میں اس کی کرسی کے پیچھے بڑا سا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لوگ اصل میں باور یہ کرواتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو ہم تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم دیکھو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے. اس کلمے کی حقیقت کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کلمے کی حقیقت اصل میں ہے کیا. بڑی غور سے سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، بہت کام کی باتیں ہیں. اگر کسی قادیانی سے بات کرنے کا موقع ملے تو کم از کم 2-3 دلیلیں تو ہونی چاہیے نا. جب دلائل ہی نہیں ہوں گے تو آپ بات کیا کریں گے؟ دوستو دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، اگلے بندے کو دلیل سے سمجھائیے. انشاءاللہ جب دلیل سے سمجھائیں گے تو آپ کی بات اس کے ذہن میں اتر جائے گی، دماغ میں اتر جائے گی، اس کے قلوب و اذہان بدل جائیں گے، اور وہ واپس اسلام میں آ جائے گا، وہ اسلام قبول کر لے گا. لیکن جب آپ گالیاں نکال کے، بد کلامی کر کے، اور نرا کافر کہہ کے، بغیر دلیل کے کافر کہہ کے اگلے کو ریجیکٹ کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے قریب نہ آئے. آپ دلیل کے ذریعے کافر کہیے، آپ دلیل کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دیجیے، آپ دلیل کے ذریعے اس کو بتائیے کہ تم غلطی کے اوپر ہو، تم کفر کے اوپر ہو، تو یہ اسلام کی حقیقی جو روشنائی ہے وہ یہ ہے. تو دلیل کے ذریعے جب آپ کسی کو قائل کریں گے نا تو وہ قائل ہو جائے گا. اگر گالی گلوچ کے ذریعے، بد کلامی کے ذریعے آپ کسی کو بھی درس دیں گے تو وہ قریب نہیں آئے گا.
یہ میری بات یاد رکھیے، وہ دور ہو جائے گا۔ یہ کام اصل میں مرزا قادیانی کرتا تھا، یہ کام مرزا قادیانی کرتا تھا۔ وہ اپنے ہر نام ماننے والوں کو گالیاں نکالتا تھا، وہ بد کلامی کرتا تھا، وہ بد دعائیں دیتا تھا، اور وہی کام جو مرزا قادیانی کرتا تھا وہی اگر آپ نے شروع کر لیا تو آپ میں یعنی مسلمانوں کے اندر اور قادیانیوں کے اندر یا مرزا قادیانی کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ گالیاں نکالنا مرزا قادیانی کا کام تھا، اور یہ گالیاں نکالنا قادیانیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میری زندگی اس کام کے اندر گزری ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں قادیانی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن وہ گالیوں کے ذریعے نہیں، وہ دلائل کے ذریعے، وہ کتابیں لکھ لکھ کے ہم نے ان کو سمجھایا ہے، مناظرے کر کر کے ان کو سمجھایا ہے، یہ تبلیغ کر کر کے ان کو سمجھایا ہے، اگلے کی بات سنی ہے، اس کو سامنے بٹھا کے اس کی بات سنی ہے، بڑے صبر اور تحمل سے بات سنی ہے، اور اس کے بعد اس کو سمجھایا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہے، تو اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے قادیانی، وہ تو نہیں بدلتا، اس کے دل کے اوپر اللہ مہر کر دیتا ہے، لیکن جو نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، جو سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں، جو نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں نہ ہی کال پہ آتے ہیں، لیکن ان کے دل بدل جاتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں، اور وہ اسلام میں آ جاتے ہیں اور قادیانیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، ہم بات شروع کر رہے ہیں کلمے کی کہ یہ کلمہ جو قادیانی پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ جو محمد کا لفظ ہے نا، وہ اصل میں ہوں، وہ محمد میں ہوں۔ عاجز نے یہ اپنی کتاب لکھی ہے قادیانی کلمہ، اور اس کے اندر اصل کتابوں کے سکین، قادیانی کتابوں کے اصل سکین جو ہے نا وہ آخر میں لگا دیے ہیں، اور وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ نیٹ کے اوپر بھی یہ کتاب اویلیبل ہے۔ ویسے فزیکلی تو یہ کتاب ہارڈ کاپی تو ختم ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں ہم نے چھپوائی تھی، تو اب تو یہ تو ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی دوست اس کو دوبارہ چھپوا دے، اور تاکہ یہ ہارڈ کاپی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک استاد تقسیم محترم، میں کریں۔ معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے تھے۔ یہ نیچے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو امت ہے وہ آ گئی ہے نیچے، تو آپ سب سے پہلے نا ان کو بتائیں کہ مرزا قادیانی کا جو خلیفہ ایک دفعہ احمدیوں کے مدرسے میں گیا تھا، وہاں اس کے ان کے بارے میں کیا اظہار خیال تھے، اور دوسرا اصل احمدی کون ہے، وہ کتورے والا جو ابھی تو ہے نا ابھی وہ والا، وہ وقت نہیں پڑھ لیں۔ آیا، بتاتے ہیں، کوئی نہیں، ان کو کرنے دیں، کوئی نہیں، ان کو کرنے دیں، یہی بدل جائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، میرے تجربے کی بات ہے۔ یہ جو آج گالیاں نکال رہے ہیں نا، انہوں نے بدلنا ہے، انہوں نے بدل جانا ہے۔ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انتظار کریں، 1 دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال انتظار کریں، بدل جانا انہوں نے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے تجربے کی بات، ان کو کمنٹ کرنے دیں، ان کو گالیاں دینے دیں، ان کو جو چاہتا ہے ان کا وہ کرنے دیں، ان کو اپنا غصہ نکالنے دیں، لیکن یہ حقیقت کا سامنا جب کریں گے نا بدل جائیں گے۔ ابھی ہم حوالے دینے لگے ہیں، دلائل دینے لگے ہیں، یہی ہمارے جو بھائی ہیں جو گالیاں نکال رہے ہیں، یہ جا کے اپنی کتابوں میں جب دیکھیں گے نا تو یہ بدل جائیں گے۔ کالر بھی کوئی آئے ہیں، کالر بھی آئے ہیں، ریئل گجر صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سناؤ مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ جی اللہ شکر جناب۔
जनाब ऐसी मलक साहब को गल है तो बिल्कुल भी फिर गल्ला पता सुना गाना कटना ले आया मैं कहाँ दे देना थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे ना आवाज नहीं समझ आ रही, हालांकि मैंने हैंड फ्री लगाया। मैं प्यारा जड़ा आया ना गाना कटन थले जड़ा लंच थी मैं तो जरा थोड़ा जवाब दे सकना सी। ये ऊपर जो भाई बैठे हैं इनको बात समझ आई कि नहीं नीचे नीचे वाले भाई? जिसने जो कमेंट किया उसको, जिसने ये मकसद लाख लिखा है, ये इस बंदे ने आपको कमेंट किया बस यही इसका असल मकसद या लाख मुलाकाम रूम और चंदा इकट्ठा करना। इसको मैं जवाब दे सकता हूँ अगर आपको इजाजत हो तो। नहीं, आप जवाब ना मेरे भाई दें, मैं जवाब देता हूँ। मैं असल में कमेंट देख ही नहीं रहा, मेरी कमेंटों पे नजर ही नहीं है, मैं आपकी जियारत कर रहा हूँ। तस्वीर जो नजर आ रही है ना, कमेंट नहीं मैं देख रहा, मैं आपकी जियारत कर ठीक रहा है, हूँ। कमेंटों से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपना मौजूद शुरू रखें, मैं सुनता हूँ आपकी बातें। अच्छा, वैसे तो मेरे इबरार का तरीका कार ये होता है कि सवाल करने वाला सवाल करके ना नीचे उतर जाए, तो आप अगर नीचे बैठ के सुन लें। ठीक है, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। आप हाँ, बड़ी मेहरबानी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले मैं आपको बताऊं, मुझे 6-7 साल हो गए इन लोगों का पता चला, मतलब साहब के रोड में बैठा इनको पता चला जी ऐसी कौन, पहले पाकिस्तान का इनको पता ही नहीं था ये जो लोग जो फतवा डालते हैं इंसान के अंदर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया। तो ठीक, मैं आपको नीचे बैठ के सुनता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी गुज्जर साहब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अबू अली साहब भी तशरीफ ले हैं। अबू अली साहब, मैं जरा एक हवाला पढ़ने लगा हूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है? इजाजत है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम। अच्छा जी, ये रूहानी खजाइन कादियानियों की रूहानी खजाइन जिल्द 18 है, सफ़ा 207 है। जिल्द 18 सफ़ा 207, जिल्द 18 सफ़ा 207। मिर्जा कादियानी कहता है, फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ लल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। इस वही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। इस वही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता है एक चीज का, कि आप लोग जो मुसलमान लोग जो कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान पाक में? आपको नहीं पता, मैं बता देता। ये कलमा तय्यबा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं है। ये सिर्फ 2 आयतों के अंदर है। नदीम साहब माइक म्यूट करिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक अलग आयत में है, मुहम्मद रसूलुल्लाह एक अलग आयत में। डबल टैप करें यार, फारग नहीं किसी ने बैठ, फारग नहीं बैठ, डबल टैप करें और शेयर करें। अभी देखें 3 के हुए, 3 के हुए, यहाँ 3 के होने चाहिए थे। अभी जितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया मुझे, 19 मिनट हो गया। 19 मिनट के अंदर कम से कम 30 के होने चाहिए थे। यानी पहले 10 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर 10 के हो जाने चाहिए। तो ये देखिए अभी 3 के हो गए। ठीक है, अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारी बात समझ आ रही है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप ये सारे काम करें जो हम आपको कहते हैं वो करें। फिर हाँ, अगर आपको बात समझ नहीं आती तो फिर बंदा छोड़ के चला जाए, वो क्या मसला? कोई जबरदस्ती तो नहीं है आपको बताया हुआ। अगर आप हमें पसंद करते हैं, हमारी बात को पसंद करते हैं, आपको कोई इल्म मिल रहा है, तो आप कम से कम हमारा तामुन तो करिए ना, प्यार मोहब्बत का इजहार तो करें ना। सिर्फ मुंह से तो ना कहें जी हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, तो जो हम आपको कहते हैं वो आप करते नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? अच्छा, ये मैंने अपनी किताब के ये सफ़ा नंबर 48 के ऊपर ये बात की है, ये देखिए, और इसका स्कैन मैंने अपनी किताब के आखिर में लगाया है। ये देखिए, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 207,
ये असल स्कैन कादियानियों की किताब का बिल्कुल असल स्कैन। तो ये जो कलमा शरीफ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दो मुख्तलिफ आयतों के अंदर है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो एक आयत के अंदर है। सिर्फ पूरे कुरान में सिर्फ एक आयत में, पूरे कुरान में सिर्फ एक आयत। वो कौन सी है? सूरा अल फतह की आयत नंबर 29। याद रहेगा? याद रहेगा मेरे दोस्तों को? याद रहेगा कि नहीं? ये हवाला याद करें, सूरा अल फतह आयत 29। याद रहेगा आपको? कोई नीचे लिख दे, कोई नीचे लिख दे। मैं आपको ये चीजें याद करवाना चाहता हूं। नोके जुबान होनी चाहिए, नोके जुबान। ऐसे तड़ 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 बोले आप, बोले जरा, ये नीचे लिख दे। आए ये सूरा अल फतह आयत 29 के अंदर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो ये आयत है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफारि रुहमाउ बैनहुम। मिर्जा कादियानी कहता है इस आयत में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। मेरा नाम मोहम्मद और रसूल रखा गया है। मेरा नाम, ये देख ले, हाईलाइट इबारत है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको देखिए। मैं समझता हूं सिर्फ एक हवाला काफी है मुझे अपने दावे को साबित करने के लिए। सिर्फ ये एक हवाला काफी है कि कादियानी कलमे के अंदर जो मोहम्मद कहते हैं वो मिर्जे कादियानी को मोहम्मद कहते हैं। यही बात लोरियों ने कही थी, यही बात लोरियों ने कही थी। लोरियों की एक किताब है अकायदे महमूदिया, ये वाली अकायदे महमूदिया, अकायदे महमूदिया। लोरियों ने इन मसरूरियों को, मिर्जा मसरूर ग्रुप वालों को ये बात कही कि तुम अपना कलमा अब बदल लो, तुम कलमा अब ये बनाओ, ये वाला, ये देखे अकायदे महमूदिया सफा नंबर 7, ये हाईलाइट इबारत है। वो कहने लगे कलमा तुम अपना ये लिखा करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम कादियानी रसूल अल्लाह। तुम अपना कलमा ये बना लो कादियानियों। ये एक कादियानी दूसरे कादियानी अपने फिरके को ये बात कह रहे कि आइंदा से अपना कलमा ये बना लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा कादियानी रसूलुल्लाह। अकायदे महमूदिया सफा नंबर 7, ये है कादियानियों का कलमा। अब सवाल यहां ये पैदा होता था कि जनाब ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा कादियानी रसूलुल्लाह नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो तो ये कह रहे हैं। हाँ जी, तो कलमा तो ये मुसलमानों वाला पढ़ रहे हैं। तो इस बात का जवाब जो है ना, वो कलमातुल फसल के सफा नंबर 158 के ऊपर मिर्जे कादियानी के बेटे ने दिया है ये जवाब। ये मैंने अपनी किताब के ये स्कैन लगा दिया है सफा 128 के ऊपर। ये स्कैन जरा देखिए। अब मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं, कलमातुल फसल की इबारत। मिर्जा कादियानी का बेटा कह रहा है, और मिर्जे का बेटा कह रहा है डबल टैप करें यार, शेयर करें बराड को, डबल टैप करें, शेयर करें और प्रमोट किया करें हमें यार, सपोर्ट किया करें। इससे होता ये हमारी बराड मजबूत हो जाती है, ऐसे लोया हो जाती है, कोई हिला नहीं सकता। ये कादियानी ना नीचे बैठ कर रिपोर्टें करते हैं, रिपोर्टें करते हैं, तो आपका ये काम करने से वो रिपोर्टें रिमूव हो जाती हैं। वो टिकटॉक कहती है कि ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट हमें गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। समझ आई कि नहीं? तो ये बातें इसलिए आपको कही जाती हैं, किया करें। मिर्जे कादियानी का बेटा कलमातुल फसल के सफा 158 के ऊपर कहता है
پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اس کا باپ، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ عبارت یہ دیکھ رہے ہیں آپ عبارت، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے، اپنی طرف سے بات کی ہے، میں نے کوئی کہانی سنائی ہے، گپ ماری ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے؟ بتائیے نا، کوئی قادیانی آئے نا یار، کال کریے، کوئی ہم آپ کو جناب گالیاں نہیں نکالیں گے، کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، بدتمیزی کریں گے تو آپ ہی کریں گے، کال پہ آئیے، اس کا جواب دیجیے۔ میری جو براڈ ہوتی ہے وہ متشددانہ نہیں ہوتی، اصلاحانہ ہوتی ہے، اصلاحی براڈ ہوتی ہے، میں گالیاں نہیں نکالتا، گالیاں سنتا ضرور، جو لوگ گالیاں قادیانی گالیاں نکالتے ہیں، لوگ قادیانی ہی ہیں، صرف قادیانی مجھے گالیاں نکالتے ہیں، اور تو سارے مسلمان الحمدللہ عاجز سے بڑا پیار کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ عاجز سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو دلیل دیتا ہوں، کوئی گالی نہیں۔ آپ لوگوں کو ہم جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگ ابھی کفر کے اوپر، تم لوگ مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، تم لوگوں نے ایک نیا اسلام، ایک بناوٹی اسلام بنایا ہوا ہے جو حقیقی اسلام نہیں ہے، حقیقی اسلام کچھ اور ہے، بناوٹی اسلام کچھ اور ہے۔ یہی باتیں تھی دوستو، یہی باتیں تھیں جو کہ 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی، یہی باتیں 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھیں۔ مرزا ناصر موجود تھا، وہ سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا، اٹارنی جنرل یا بختیار صاحب پوچھ رہے تھے، اے بتاؤ اے یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو اس کے اندر تو تم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے تھے، یہ والے وہ دے رہے تھے۔ ان قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس وقت بھی کوئی جواب نہیں تھا، آج بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور قیامت تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور پھر اسمبلی نے ٹھپا لگا دیا ان کے اوپر، سرکاری کافر بنا دیا ان کو، سرکاری طور پہ کافر، اور سرکاری طور پہ فتویٰ دے دیا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تم نے لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا، اسلام سے تمہارا تو کوئی تعلق واسطے نہیں۔ جی اب ہم اپنے کالرز کی طرف آتے ہیں۔ بو علی صاحب آپ بات کر رہے ہیں، بو علی صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ آپ نے وہ کلمہ، یہ عمومی ہر قادیانی کو پتا ہے کہ ہمارے کلمے میں مرزا صاحب ہیں، یا کہ صرف کچھ مربیوں کو؟ کیونکہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ بو علی صاحب یہ بات غلط ہے، مولوی کہتے ہیں، آپ نے تو حوالے دیے۔ سن لیں مجھے پتا چلا ہے کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، پورے پاکستان، تو بہرحال آپ کے سگنل ریڈ ہو رہے ہیں، سگنل گر رہے ہیں، آواز کٹ رہی ہے، تو آپ اپنی بات کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہیں مفتی صاحب میں نے کہنا تھا کہ کیا یہ ہر مرزائی کو پتا ہے کہ وہ نظریتاً کلمے میں مرزا صاحب کو لے رہے ہیں، یا صرف خاص مربیوں کو پتا ہے؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ قادیانی کتابیں اپنی نہیں پڑھتے، اور سختی سے ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ قادیانی کتابوں کو نہیں پڑھنا، قادیانی کتابیں یہ پڑھنے نہیں دیتے۔
اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی جلسہ سالانہ ہوا ہے قادیانیوں کا, تو انہوں نے وہ سٹال لگایا ہوا تھا کتابوں کا, تو ایسے کیمرہ ایسے مار رہے تھے اوپر کہ یہ دیکھو جی ہم نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو پورے وہ جو سٹال تھا نا, وہاں پہ ایک بھی مرزا قادیانی کی روحانی خزائن یا یہ اشتہارات یا مطلب مکتوبات یا تذکرہ یا سیرت المہدی یا تذکرات المہدی یا ذکر حبیب یا یہ کلمات الفصل ایک بھی نہیں تھی. وہ دیگر لٹریچر رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ اپنی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے, پڑھنے نہیں دیتے. اس کا ثبوت, زندہ ثبوت, یہ جلسہ سالانہ ابھی دیکھ لیں جا کے, نیٹ کے اوپر موجود ہے. وہ جب لائبریری اپنی وہ سٹال کا کیمرہ مارتے ہیں نا, اس کے اوپر آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا. بلکہ وہ جو پیچھے انہوں نے مرزا مسرور کے وہ پیچھے رکھی ہوئی تھی کتابیں, کچھ سجا کے رکھی ہوئی تھی, ان کے اندر بھی کوئی یہ کتابیں نہیں تھی. میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں, ابھی آپ بات کریں, میں ویڈیو دیکھتا ہوں, اگر مجھے مل گئی ابھی دکھاتا ہوں, میں ابھی ثبوت کے طور پہ ابھی دکھاتا ہوں. آپ بات کریں, اتنی دیر بات کریں. آپ ندیم صاحب بات کر لیجیے, آپ بو علی صاحب شاید نہیں کرنا. جی جی میں آخری سوال پوچھ لیتا ہوں, اس کے بعد آپ, میں نیچے چلا جاتا ہوں. یہ کیا کہ ایک رات کو براڑ لگتی ہے, اس میں فیورٹ 49 ہے, وہ فرقہ کے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ان کو چھوڑے جی, ان کو چھوڑے, آپ ان کو چھوڑے, ان کی بات نہ کریں. آپ کوئی اور سوال ہے کسی براڑ کا ذکر نہ کریں, جو اپنی براڈوں پہ جو بھی کرتے ہیں, کسی کی براڑ کا میری براڑ کے اوپر ذکر نہ کریں, بڑی مہربانی جی. اچھا, پھر سوال یہ ہے کہ ان کے فرقے کتنے ہیں, ان کے اندر کتنے گروپ؟ ان کے فرقے محترم جو ہے نا, وہ کوئی 15-16 بن چکے ہیں ابھی تک. 15-16 کے قریب فرقے ان کے بن چکے ہیں, اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. قادیانی فرقوں میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. اور روزانہ آپ وہ عامر نذیر صاحب کی براڑ پہ جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ وہ جمبا گروپ والے بھی ہوتے ہیں, لوری بھی ہوتے ہیں, اور مسروری بھی ہوتی ہیں. تینوں گروہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو وہ کتیا کرتے ہیں, وہ جناب طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں اللہ مان والے. تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. ہمارے فرقوں کی آپس میں تو لڑائیاں کبھی سنی نہیں اللہ کے حکم سے. کبھی کوئی یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی کی یہ جو کرتے ہیں آپس میں, تو بات یعنی جب دیکھا ہے کہ آپ نے حوالہ دیا نا یہ لاہوری گروپ کا, تو انہوں نے تو واضح طور پر ان سے اسی وقت کہہ دیا کہ آپ مرزا غلام قادیانی کا نام کلمے میں لکھو. ہاں, قائد محمودیہ حوالہ, قائد محمودیہ میں. یعنی ان کا تو اتنا اختلاف ہے کہ وہ کچھ مانتے ہیں, یہ مسرور گروپ کچھ اور مانتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. ایک جدیدیہ بھی ہے, حقیقی بھی ہے, ایک وہ افریقہ میں بھی ہے. بڑے فرقے, ان کے بڑے فرقے ہیں جناب, بڑے فرقے ہیں. زبردست. کلر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کلر ہو رہے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں. جی افضال صاحب آئے ہیں جناب. کیا حال ہے جی افضال صاحب, افضال صاحب. ہلو جی جناب, ہیلو, السلام علیکم سر, کی حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے. جی آپ کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ جی شکر ہے جناب. جی سوال کریے جناب. جی ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, یہ میں نے یہ پوچھنا تھا. یہ جو اہل تشیع ہیں
ये अपनी लाइन पे ठीक हैं? जी मेरा ये बराड़ इस मौजू पे नहीं है मेरे भाई। कादियानियों के मतलब कोई सवाल है तो करिए। अभी जो बात कर रहे हैं कादियानी कलमे की बात कर रहे हैं, इसके मतलब कोई सवाल है तो वो करिए। यही सवाल है मेरा कि ये जो जी मैं यही पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, वो नाइट में एक मैं रोड पे गया हूँ तो वो अहले बैत के आप अहमदी हैं? बोलते थे, मैं कि चलो अफजाल आपसे साहब आप पूछ लेता अहमदी हूँ, हैं? तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अफजाल साहब आप अहमदी हैं? जी अच्छा अहमदी हैं। तो ये जो कलमा है के अंदर जो आप मिर्जे कादियानी को मोहम्मद समझते हैं, ये क्या माजरा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी कलमे में जो आप मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लेते हैं, अटकेलियां कर रहे हैं जनाब, आप अटकेलियां कर रहे हैं। बात करें आप हमारे साथ, ये कोई तरीका तो नहीं है। अटकेलियां कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, ये तबलीग है आपकी, ये तबलीग है। सुनने देखने वालों के ऊपर क्या असर जाएगा कि कादियानी ऐसे होते हैं, इनके पास कोई जवाब ही कोई नहीं है। जवाब दे यार आके, अटकेलियां कर रहे हैं। अच्छा जी नदीम साहब, आपने कोई बात करनी है? नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जी ये लोग बस आके बस शोलाबाजी करते हैं और इनके पास कोई सवाल नहीं है। इनको पता है जो हम मिर्जे को जो है ना कलमे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो खुल के सामने नहीं आते। इनको पता नहीं क्या डरते हैं ये मरबियों से। भाई खुल के सामने अच्छा, आए, ये है कि इधर देखें नदीम साहब, एक और भी है कि मॉडरेटर और भी हैं, सिर्फ एक मॉडरेटर मेरे साथ बैठे हैं, बस आप बैठे हैं बस, ठीक है। बात समझ आ गई कुछ? नदीम साहब बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी आ रही है। और कोई मॉडरेटर आएगा, उसको आने की तो इजाजत है, लेकिन वो सवाल करके फिर नीचे जाएगा, ठीक है जी ठीक हो। सवाल करके नीचे जाएगा। मेरे साथ सिर्फ एक मॉडरेटर के ये बराड़ को मैनेज करने के लिए और मामलात देखने के लिए एक मॉडरेटर काफी है। अच्छा जी कॉलर आ गए। जी जनाब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जी। यहाँ पे थोड़ा सा ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नेट पूरे पाकिस्तान में सुना है मैंने कि प्रॉब्लम बनी हुई है। जी जी मुफ्ती साहब, वो एक मसला पूछना था। जी मेरे एक दोस्त, उन्होंने मसला पूछा, बोलते यार कि मसला मुझे पूछ कर बताएं कि अकीके के जो बच्चे का अकीका होता है। नहीं मसले नहीं मैं बयान करता। अभी तो मसला ये जो छिड़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कादियानी कहते हैं कि ये मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी, ये मसला एक ही है, मसले दूसरा नहीं, कोई मसला ठीक है, वो कोई मुश्किल नहीं है। आपको ऑनलाइन देखा तो इसलिए काफी दिनों से आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। आज चले आपने कॉल रिसीव कर ली, इसलिए मैंने वो मसला पूछा था। आप अच्छा जी अच्छा जी हाँ, वो मेरा ना सिर्फ एक अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो आपका शुक्रिया। हाँ वो इंशाल्लाह ताला आप व्हाट्सएप पे राब्ता करिए, ठीक है। नंबर नहीं है ना आपका मेरे पास व्हाट्सएप? लिख लें ना मोबाइल में एक वेट प्लीज सर। नीचे कोई बंदा लिख दे भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप ये तो बताएं 0324 पाकिस्तान से। हाँ 0324 744 744 8814 8814। ओके शुक्रिया। हाँ जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। आमीन। आपने मुझे फॉलो किया हुआ है? जी जी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं किया, सॉरी। अच्छा कर ले फॉलो कर ले। हो गया, फॉलो हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जनाब। इसी कलमातुल फसल के अंदर, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि कलमातुल फसल ये जो किताब है ना, मिर्ज़ा कादियानी के बेटे की लिखी हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सरकार, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र जनाब।
वो सेहत भी है ठीक है। अल्लाह सोने दा बड़ा फजल एहसान जनाब, फरमाओ जी। अच्छा हजूर मैं एक सवाल पूछना सी, कादियानी बंदा किस तरह पहचान सकता है? कादियानी को कैसे मसलों को- पहचान? जी कादियानी को उसकी शक्ल से आप पहचान सकते हैं। जी जी ऐसे वहशत तारी होगी उसके चेहरे के ऊपर, ऐसे हवाइयाँ उड़ी होंगी, जब वो किसी मुसलमान को देखेगा आपके सामने आएगा ऐसे एकदम उसको ना उसका रंग फक हो जाएगा। और हाँ हाँ, इस्लाम की अपनी एक वो है ना, तो ये खूबसूरती है। कादियानी जब किसी मुसलमान से मिलते हैं ना, हुई इनकी बुरी हालत हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती हैं, और जनाब मुंह इनका खुले का खुले ही रह जाता है जी। अच्छा, एक और अलामत इनकी मैं आपको बताऊंगा कि लटरीन में बढ़ा जाते हैं, लटरीन में बार बार जाएगा, क्योंकि मिर्जा कादियानी वो जाता था ना, ये सुन्नत है मिर्जा कादियानी के दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर करना, तो कादियानी लटरीन में बड़ा जाएगा। इसको लटरीन आई हो या ना आई हो, लेकिन वो सुन्नत पूरी करने के लिए बार बार जाता है, ये भी अलामत है। तो एक और भी अलामत मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो ये फ्रेंच कट दाढ़ियाँ रखते हैं, जी 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 ये उमूमी तौर पे कादियानी रखते हैं। ठीक हो गया जी, ऐसे ही। एक और अलामत मैं आपको बता देता हूँ कि आज से कोई ना 10-12 साल पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली थी, कादियानियों की पहचान, जी गालबन 2010-11 में डाली थी, पुरानी बात। तो उसके तो अब मिलियन और बिलियन के अंदर उसके व्यू हो चुके हैं। तो उसमें मैंने सारी अलामतें बताई थी कि कादियानी को कैसे पहचाना जाता है। इनकी जो औरतें होती हैं वो बुर्का जो पहनती है ना, वो जी, जी। इधर ये जो नोक होती है ना, इधर जी, रखती जी। हैं, इधर ठीक हो नकाब। और बुर्का इनका वो बटनों वाला होता है, दरमियान में बटन होते हैं। सही है, अलामत है इनकी। हाँ हाँ, ये बुर्का उनका अलामती बुर्का है, ठीक हो ठीक गया। है। तो हजूर मर्दों में भी ऐसा कोई लिबास इनका होगा? मर्दों में ये जो एक इनकी होती है टोपी, इनके जो मुरब्बियों की अलामत है, ये मेरी टोपी है, ये जी। टोपी इससे मिलती जुलती है, यानी ये तो गोल है ना बिल्कुल, ये ऊपर वो तिरछी होगी। से ऊपर से ऐसे ऐसे करके होगी, ऐसे करके, हाँ ठीक हो गए, समझ रहे ठीक हो हैं? गया। हाँ समझ लगा। मतलब ये तो गोल है ना बिल्कुल, हाँ ये वो गोल है, सीधी है गोल। ऐसे ऐसे करके होगी, ऐसे करके समझ रहे हैं? ठीक हो तो वो टोपी इनकी है, ये वो उनके खास मुरब्बी पहनते हैं, मुरब्बी जो इनके स्कॉलर होते हैं ना, वो पहनते हैं, उनकी अलामत। एक और अलामत है जना कैप, जी 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 जना कैप भी ये इनकी अलामत है। बहरहाल फिर गुफ्तगू से भी आप पहचान सकते हैं कि जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के मौजू पर जब बात करेगा ना, तो वो कादियानी होगा। मुसलमान इन दो मौजूआत पे बात करते ही नहीं है ही नहीं, उनको मुसलमानों को पता ही कौन नहीं बेचारों को। कादियानी इन दो मौजूआत को लाजमी छेड़ेगा, वो चाहे हजरत बात ईसा का मौजू या हजरत इमाम महदी का मौजू, ये एक बड़ी पक्की अलामत है। ठीक हो गया। क्योंकि हजूर आपको पता है इधर दुबई में, सऊदीया में अक्सर जमात को अगर गुजर जाती है तो दोबारा आदमी 3-4 इकट्ठे होकर जमात करा देते हैं। हाँ, और नहीं ओए तुसी उनका किथे मालूम नहीं पहुंच होता गए ना। हो, और नहीं, तुसी नहीं, किथे वैसे मैं पहुंच ये गए। कादियानी सऊदी अरब, दुबई ਦਾ नहीं मैं कहंदा, सऊदी हाँ जी। अरब पूरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ, माशाअल्लाह, है हाँ ही नहीं। माशाअल्लाह। दुबई च भी है बहुत ही काम- नहीं। हाँ जी हाँ जी। और बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पता ही को नहीं। लो जी, मुझे पता चला कि मदीने के अंदर एक कादियानी मरकज कायम हो चुका है और एक बंदा है वो उसको लीड कर रहा है। ये पुरानी बात बता रहा हूँ। जी। आजज चला गया, आजज चला गया,
दिन को तारे दिखा दिए थे अल्लाह के हुक्म से। सही हो हजूर, मैंने भी यूट्यूब से बयान सुना था। वो उनका पूरा ब्लॉक कर दिया जनाब, अल्लाह के हुक्म से खत्म कर दिया साहब अभी माशाल्लाह। नहीं, पूरे सऊदीया में अल्लाह के हुक्म से आपको, आप लोगों को पूरे सऊदीया में किसी बॉर्डर के ऊपर भी किसी एक कादियानी की बू भी आती है ना, आज से राब्ता करिएगा, आज से राब्ता एक दफा आपने लाजमी करना है ही नहीं। झूठ बोलते कादियानी, झूठ बोलते, ये झूठ कहते हैं जी हम वो हज करके आते हैं, हम उमरा करके, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ, कोरा चिट्टा झूठ। हाँ, इनके बड़े बंदे हमने पकड़वाए हुए हैं, उमरा करने के लिए आए थे, छुप के आए थे, बड़े बंदे पकड़वाए हैं हमने। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सऊदी गवर्नमेंट भी सख्त एक्शन लेती है इनके खिलाफ भी, बड़ी सख्त खेल है, बड़ा सख्त, बड़ा सख्त जुर्म है। हाँ, कोई आप अंदाजा कर ले, वो यही था वो डर और खौफ कि मिर्जा कादियानी हज करने नहीं जाता था, उसने हज नहीं किया पूरी जिंदगी, हालांकि उसने दावा किया था कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में, तो मक्का मदीना उसको देखना नसीब नहीं हुआ। उसे अपनी किताबों में लिखा है कि मुझे खौफ है कि ये मुझे मार देंगे, ये सऊदियन। इनका कोई खलीफा नहीं वहां घुस सका, ये मिर्जे मसरूर क्यों नहीं जाता? हाँ जी, ओए सऊदी हुकूमत, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सख्ती है ना कादियानियों के ऊपर, वो सऊदी अरब में। हाँ, सऊदी अरब में। हाँ, किसी मुल्क में इतनी सख्ती नहीं है। मैं एक बयान सुना था एक आप मौलवी का, वो ये देवबंदी के मौलवी थे, अच्छे आलम थे, वो भी वो बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक कादियानी गया था, उन्होंने टोटे करके उनको भेज दिया, बोला दोबारा फिर कोई। हाँ 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 जी 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 जी, ये बात भी सुनी है मैंने। अब्दुल लतीफ इनका था, मर गया था, कत्ल हो गया था, तो इन्होंने फिर जनाब मिर्जे कादियानी ने भी लिखा ना, वो कहा कि ये सैयद शुहदा है, यानी इमाम हुसैन से भी बड़ी इसकी शहादत है। माज़अल्लाह जी, माज़अल्लाह। हाँ जी, वो अब्दुल लतीफ नाम का था, उसको ये सैयद शुहदा कहते हैं, हजरत इमाम हुसैन से भी बड़ा शहीद। वो बात भी सच्ची है, मौलवी की मैं बात बड़ी बड़ी सच्ची है। अफगानिस्तान में एक भी नजर नहीं आएगा आपको, कोई पठान कादियानी नहीं मिलेगा, ये भी है। पठान बड़ी गजूर कौम है, बड़ी गजूर कौम है, बड़ी। आप अंदाजा करें कि एक पठान था ताहिर खान, जी जी, वो उसने कर दिया नबूवत का दावा, वो कादियानी था, कादियानी वो हो गया किसी तरीके से, बस बंदा लालच में आ ही जाता है ना, तो वो बस उसके मुकद्दर खराब, वो किसी तरीके से कादियानी हो गया, बाद में उसने नबूवत का दावा कर दिया। उस ताहिर नसीम खान के साथ पेशावर के अंदर उसका केस लगा हुआ था, अदालत के अंदर ही जो कुछ हुआ था वो सारी दुनिया को पता है। ओ जी, वो क्या नाम है, बात आगे नहीं करनी, वो चूंकि सोशल मीडिया का मसला है। ठीक होगा। अच्छा ज़रूर, एक और बात है, जब हम पाकिस्तान में अपनी बहन भाइयों बेटियों की शादी करते हैं, तो जब अब ये देखा आपने, ये नया भी फैशन हो गया कि अब दूसरी बिरादरी में भी कर सकते हैं आप, जो रिश्ते कराने वाले होते हैं, तो हम बात ये है कि ये जो अमूमी तौर पे रिश्ते जो करवाने वाले होते हैं ना, जी जी, ये बड़ी डंडी मारते हैं, और खास करके बाहर का रिश्ता जब भी आए, वो चाहे कोई लड़की का रिश्ता है बाहर का या किसी लड़के का है, तो 101 दफा सोचना है, 101 दफा सोचना है। मैंने खुद जाती तौर पे मैंने पहले बनाया हुआ था रिश्ता सेंटर, मदनी रिश्ता सेंटर, तो बड़े मैंने निकाह करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे पास अमूमी तौर पर रिश्ते बाहर के आते थे, सही हो। तो लोगों की भी डिमांड इधर से होती थी कि हमें हमारी कुमारी लड़की है, नौजवान लड़की है, बस कोई बुढ़ा खोसड़ी मिल जाए, कोई शादीशुदा ही मिल जाए, होना बाहर का चाहिए। तो इस तरह की डिमांडें मेरे पास भी बहुत आती थी। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया हुआ है, आगे जाके मैंने शुरू करना है दोबारा।
अच्छा, तो बड़े बड़े फिर बीच में ड्रामेबाज आए, जाती तौर पे मुझे जी जी कादियानियों ने मतलब थे वो कादियानी, उन्होंने राब्ते किया जी हमारा भी रिश्ता करवा दे, हम सुन्नी ही हैं, बड़े बड़े सुन्नी ही हैं, मुफ्ती साहब आप हमारे उस्ताद हैं, अब आप हमारे उस्ताद। जब मैंने इंक्वायरी करवाई बंदा कादियानी निकले, मैं तो फिर घर तक पहुंच जाना हुंदा है ना, बस सही अच्छा ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਕਿੰਜ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ सही गल ਤੇ ये है रिश्तों का कोई इतबार नहीं, बड़ा ठोक बजा के। वैसे मेरा ज़ाती राय ये है कि रिश्ते अपने रिश्तेदारों में करें, बाहर नहीं, अभी यही मैं आपसे बात कंफर्म कर रहा था कि आप भी थोड़ा बहुत ये गाइड कर दिया करें सब टिकटॉक पे कि जब रिश्ता करने वाला ये सब सोच लिया करो। हाँ देखा, बता तो दिया ना मेरे भाई, मलक साहब बता तो दिया ना। अब कोई अमल ना करे तो उसकी अपनी मर्जी है, फिर वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहा है तो मार, क्या कर सकते। मेरे पास रोती लड़कियां, मैंने मेरे एक लंबी चौड़ी तादाद है, लंबी चौड़ी तादाद। शाह जी मेरे 3 बच्चे हो गए जे, शाह जी मैं सुन्नी सा, शाह जी कादियानी नाल मेरा विआह हो गया, शाह जी मैं मुंडा फसाया सी इंटरनेट तो, उथों गिराना लग्या सी, शाह जी मैनू नहीं सी पता है कादियानी है। लड़कियां रोती देखी है मैंने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जी, अखा खोलो, ये सोशल मीडिया पे कादियानियों ने अपना जाल फेंका हुआ है। ये जो ब्राडें करती हैं, ये नचने टपने वाली, ये अमूमन कादियानी लड़की जिनके ऊपर आप नोट फेंक रहे होते हैं, जिनको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, जी शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई। तुम्हें पता भी ये नहीं आगे सबसे तुम्हारे ज्यादा बन क्या रहा है तुम्हारे हमारे साथ। पाकिस्तान की हजूर जितनी टिकटॉक चलती है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की लेडीज हैं टिकटॉक के ऊपर। हाँ वो असल में कादियानी है, अक्सर कादियानी, अक्सर अक्सर ये कंजरियां जो है ना कादियानी, ये अक्सर कादियानी, बहुत अक्सरियत है उनकी, और लड़कों को नहीं पता, हमारे लड़कों को नहीं पता, बस उनके जाल में फंस जाते हैं, इश्की मशूकी और वो लड़ानी शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता कि ईमान हाथ से चला गया, ईमान तो गया ना। ये 2015-16 की बात है जब हम उधर से पाकिस्तान में काम करते थे, उस वक्त सियालकोट से बहुत लड़के गए थे ये कादियानी के, वो लड़कियों के साथ ना शादी करके ना, उस वक्त बहुत अच्छा ये ना कुछ कॉलर आए हैं मलक साहब, कॉलर को ना ले ले, कॉलर ले 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 आप नीचे बैठ के, क्योंकि एक कॉलर को हम एक वक्त में लेते हैं। मुश्किल नहीं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अच्छा नदीम साहब अगले कॉलर को उठाइए जरा फिर। जी जनाब, जनाब मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आपका क्या नाम है जनाब? मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद हुसनैन हसनैन साहिब जी, मोहम्मद हसनैन साहब करिए बात, सवाल करिए। अच्छा सर जी, सिंपल सी बात है, मुझे इतना नहीं है, मतलब इल्म नहीं है कादियानों के बारे में, तो मैंने जस्ट आपसे 1-2 सवाल करने थे, अगर आप बता सकते हैं। जी करिए जनाब, करिए। अच्छा सर जी, इनका जो सिस्टम है, मतलब अगर इनको पता चल जाए कि बंदा कादियानी है, तो इनको कोई है तो मतलब टीम इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सके? आराम से अपने थाने में, करीबी थाना जो आपका है ना, वहां पे जाइए और अपना बताइए कि ये 2 मिनटों के अंदर उन्होंने उठा लेना। नहीं सर जी, ये तो पाकिस्तान का कानून बड़ा सख्त है, पाकिस्तान का कानून बड़ा सख्त है। ओहो, 2 मिनट नहीं लगने। नहीं हो सका ना, एक बंदा है उसके साथ हमारे बड़े खराब मामला रहे हैं। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी रिपोर्ट दर्ज करवाई, पकड़ा भी गया था लेकिन आ गया था वापस। पकड़ा गया था, देखा ना, पकड़ा तो गया ना, कानून ने तो अपना काम किया ना। जी जी, लेकिन वो आ गया था वापस, वो बड़ा सिस्टम उन्होंने खराब किया। आ जाना आना ना आना वो एक अलग बात,
कानून ने तो अपना काम किया ना, देखिए जी जी मैंने जो बात की है उसका सबूत मिल गया ना, कानून जी, अपना काम करता है। जी जी बिल्कुल। नहीं, मैंने ये कहना था कि मतलब ये आप समझें कि एक गली है, उसमें 30 घर हैं, तो 30 घरों में एक घर जो है इन कादियानी बंदे का बना हुआ है अपना लाती, तो ये सिस्टम आपको पता है कि सिस्टम को ख़राब करता है। उसने भी इस तरह ही किया होगा कि एक लड़की को मतलब फंसाया था, तो वो लड़की को मतलब इस तरह जाल में फंसा के शादी कर ली, जो है थी दूसरी, वो कादियानी नहीं थी, उसके बच्चे भी हैं उसमें से, लेकिन वो आज भी मतलब रोती है, कहती है मैं फंस गई, मतलब मेरे से ना डिवोर्स नहीं हो सकता। देखिए ना, वो उस लड़की का कसूर है, उसके घर वालों का कसूर है। मैं आपको ये वो बताना आप चाह रहा हूँ पीछे कि जाएंगे ना, पीछे जाएंगे उसकी हिस्ट्री, कसूर निकलेंगे, उस लड़की का निकलेगा या उसके घर वालों का निकलेगा। बिल्कुल कसूर तो है ना उनका अपना ही। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें 20 घर दूसरे हैं तो एक घर इनका अपना है, तो इसका ये सिस्टम आपको भी पता है अच्छा नहीं है, लेकिन वो जान नहीं छोड़ रहे। हमने बड़ी कोशिश की, वो फिर अब क्या किया जा सकता है, इसका कोई हल तो नहीं है। खुद जब एक बंदा गड्ढे में गिरे है तो उसको हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, बताइए। नहीं, उसकी औरत की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो बंदा उस एरिया को, उस गली को नहीं छोड़ने पर राजी, मतलब हमने बड़ी कोशिश की। गली को छुड़वाना नहीं है, आपन को किसने कहा कि आप गली छुड़वाएं? उनको भी भाई जिंदा रहने का हक है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरी है, सुन लेना, पाकिस्तानी शहरी है, उनको रहने दे। हाँ, उनका अपना है दीन मजहब है, आपका अपना दीन मजहब है, कानून के मुताबिक जो भी करना है कानून के मुताबिक करना है बस। मखसूस एरिया में खराबियां भी तो पैदा होती है ना, उनका क्या खराबियां पैदा होती हैं? उनका सिस्टम बहुत अलग है हमारे से। मतलब क्या खराबियां बताएंगे तो फिर ये ना। खराबियाँ ये हैं कि जो आपने बताया था, जिस तरह इनकी जो बेटियाँ होती हैं, इनका सिस्टम और टाइप का होता है, ये लड़कों को अपनी तरफ कैप्चर करती हैं, तो ये सिस्टम गली का माहौल इस तरह बड़ा ख़राब किया हुआ है। हाँ, वो है कि इनकी लड़कियां और लड़के दोनों वो फिर मुसलमानों को अपने जाल में फंसाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये है, यही मसले मसाइल हैं, मसले तो है। इसलिए मैंने कहा। और वैसे भी बस वो शैतान जो है ना, फिर ऐसे कामों के अंदर शैतान मुआवनत करता है जी जी, तो वो फिर काम जल्दी हो जाता है। बिल्कुल इस तरह, यही मैंने कहा चलिए आपसे इन्फॉर्मेशन ले लूँ। बस यही है, कानूनी मामले मैं तो नहीं जानता, मैं आपको शरई हल ही बता सकता हूँ और वो मैंने बता दिया। बकाया कानून जाने और कानून का काम जाने, रियासत जाने, क्योंकि रियासती मामला है ना ये, उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है इतना। बेसिकली हुआ ये था कि जो औरत थी ना, उसने मेरे वालिद साहब को भी थोड़ा सा अपनी बातों में ले लिया कि ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा फंसी, मेरी जान छुड़वा दें, तो वो जान अपनी छुड़वाने के चक्कर में हमें फंसाया, फिर हमारा केस हो गया। तो हमारे घरेलू मतलब अपनी पर्सनल घरेलू फैमिली जो लाइफ है, इसके ऊपर बड़ा असर पड़ा, बड़े मसले तो हमारे साथ उनका बड़ा मसला चलता रहा, लेकिन वो चले एक बार मैं दुआई कर सकता हूँ। मैंने नए कॉलर को लेना है, और कोई बात है तो कर ले, मेरे मुतलका कोई अगर कोई है। कोई नहीं, बस जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे फॉलो किया हुआ है मेरे भाई? नहीं, मैं कर लेता हूँ। कर लेना, फॉलो तो करे ना यार। कर लिया। जब भी हम कॉल करेंगे तो फिर आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप भी कॉल में शामिल हो सकेंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। नीचे बैठ के मेरे भाई आप डबल टैप करें और शेयर करें, ठीक है जी। और सुनिएगा, यहाँ कॉलर आ रहे हैं, हो सकता है कोई कादियानी आए तो फिर उसके साथ मुकालमा हो, डिबेट हो, तो फिर आपके भी इल्म में इजाफा हो। जी जी बिल्कुल। चले ठीक है। अच्छा जी, नदीम साहब अगले कॉलर को उठाइए जी। कॉलर तो मौजूद नहीं है अभी उस्ताद मोहतरम, वो अपने ही हमजा भाई थे, वो कॉलर नहीं है अभी कोई भी फिल फोन अभी के। नहीं, अपने बंदों को भी तो लेना है ना कॉल पे लेके। हमजा भाई आ रहे हैं जी। हमजा भाई वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, एक बात पूछनी है। वो अभी एक वीडियो देखी थी तो मैं उसका ना जवाब देने लगा था, पीर मेहर अली शाह के बारे में, जो ये मरज़ई करते हैं दजल। तो एक वो ना साथ में कोर टॉपिक चल गया, वो एक ना मिर्ज़े की किताब थी इजाज़ुल मसीह,
नीचे उसने लिखा हुआ था अरबी में, वल्लाह आलम कौन सी पंजाबी अरबी में लिखा हुआ है उसने, नहीं वो अरबी नहीं है, वो 70 दिन का, 70 दिन, हाँ 70 दिन का रमजान है। वो वाली बात ना मैंने देखी है, तो उस पर कह रहा हूँ चलो ये क्लिप बना देता हूँ, एक वीडियो पहुंच जाएगी वहां तक। तो उसमें एक चीज़ ये पूछनी थी, ये किताब जो लिखी है इसने, ये शाया इसने कब की है, लोगों में ये कब इसने इसको मंजर आम पर मैं लाया? और कितना मुझे अर्सा थोड़ा लगा सा टाइम दे, आप आपस में बात करें, मैं अभी किताब पकड़ लेता हूँ, हैं? जी जी, मैं इधर, और नदीम भाई। जी हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो नीचे सुन रहे हैं ना, ये मैं थोड़ी सी अर्ज़ कर दूं, उस भाई ने ड्यूट अपना ऑफ किया हुआ था, तो वीडियो ये थी कि मिर्ज़ा जो है ना, ये प्लम्बर, ये कह रहा था ये कि सीरतुल महदी की जिल्द 18 के अंदर इजाजुल मसीह है, ये इधर भी नाम लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ ना इजाजुल मसीह। और इजाजुल मसीह का टाइटल पेज ये है, और ये लिखी कब गई है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। 1901 को लिखी है, ये इधर ही लिखा हुआ है, वो जो आप कह रहे हैं 70 दिनों में, वो मिर्जे ने खुद लिखा है, ये देखो नजर आ रहा है कि नहीं? वो कुछ तो बोलो जी, आ रहा है उस्ताद मोहतरम। चुप्पी हो गए हो। पाकिस्तान नेटवर्क भी तो है ना, नेटवर्क नहीं ठीक, नेटवर्क खराब पूरे पाकिस्तान चो है। जी जी उस्ताद जी, नज़र आ रहा है यहाँ पर तारीख लिखी हुई है 23 फरवरी 1901 इजाजुल मसीह की, उसके नीचे ही फिर आगे गलती का ज़ाला शुरू हो जाता है। नहीं, इसने मिर्जे ने जो तारीख लिखी है ना 20 फरवरी 1901, 20 फरवरी 1901। ठीक हो गया, यानी कि ये भी झूठ बोला इसने कि रमजान के 70 दिनों में लिखी, रमजान 70 दिनों का होता ही नहीं, पहली तो बात ये होता ही नहीं है। और बड़ी गलतियां हैं इसके अंदर, ये देखो एक गुरदारसपुर, अब गाफ अरबी के अंदर नहीं होती, पे अरबी के अंदर नहीं होती, फिर वो कहता है भेरवी, भे अरबी के अंदर नहीं होती, ठीक है। बड़ी गलती है इसके टाइटल पेज पे, बड़ी गलती है इस एक पेज के अंदर जो अरबी के अंदर इसने अरबी की फाश अगलात उसने की है, फाश। ये वो ही थी जो उसने कहा था पीर मेहर अली के मुकाबले में डर के भाग गया था ना, तो घर में ही बैठ के जी मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूंगा अरबी के अंदर, ऐसी तफसीर हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी छोड़ी उसने। तो अच्छा, इधर एक और बात भी है, ये तफसीर इसने भेजी थी, बिल्कुल बिल्कुल मिस्र भेजी थी रशीद रजा के पास, तो रशीद रजा ने कहा कि ये किस उल्लू के पट्टे की ये किताब है। क्या लगा ये तो ये कह रहा है कि ये बड़ी हाजा किताबी बलीगुन फसीहुन मलीहुन, और कह रहा है ये जहालत का मजमूआ है ये किताब, अल मीनार के अंदर। हाँ, तो वो पूरा डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो मैं वही देख रहा था। अच्छा, जब जवाब दे दिया था मिस्र वालों ने, तो आगे से इसने एक और किताब लिख दी उनके खिलाफ। उनके खिलाफ गालियां देनी शुरू कर। ये किताब जब इसने भेजनी थी ना, ये किताब जब भेजनी थी उससे पहले एक किताब मिर्जे ने लिखी, उसके अंदर रशीद रजा की तारीफों के पुल बांध दिए। रशीद रजा बड़ा ही कमाल का अरबी दान है, रशीद रजा बल्ले बल्ले भाई, रशीद रजा की क्या ही बात है, पूरी दुनिया में अगर कोई अरबी दान है तो वो रशीद रजा है। तो जी जो किताब चेक होके वापस आई ना, ते मिर्जा कादियानी दा रंग फक उन्हें क्या हो गया, उन्हें गाला ओ कड़ियां, फिर तेरी भैन दी तेरी बात है, तेनू तो मैं क्या तू बड़ा बड़ा
ਅਰਬੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਕੜ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਮੁਹਾਤਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਹਾਮ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਹੈ ਨਾ, 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ ਮੁਹਾਨਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਫਾ अल हुदा वल तबसरातु लिमन यरा। ओए होए होए, ए उन्हें ना रशीद रजा दी इबारत, ए मैं हाईलाइट कर दिया, जरा हाईलाइट कर दिया। ए मिर्जे ने भी वो गल लिखी रशीद रजा ने यह लिखा सी कि यानी बहुत से अहले इल्म इससे बेहतर 7 दिन में लिख सकते हैं। अंदर रशीद रजा ने मैनू लिखे है। हाँ जी, ते फिर अल हुदा जिहड़ी किताब उन्हें लिखी सी ना, ओदे विच रशीद रजा नूं फिर ओ गालां कड्डियां, ओए होए पागल हो गया सी, ओए होए गालो गाली जनाब, ऐसी मोटी मोटी गालां कड्डियां सू वाला मान वाला सी। पढ़ के वेखो, आंदा पागल दा तबलीग करन पता ही कुछ नहीं है। तेनू ही पता टोनी वाइन पी पी के तेरी मत वजी सी। नहीं ते अगर तो पागल दा बच्चा सी, ओ जाहिल सी, ते तेनू किताब किन्ने क्या सी उदों भेज है। पहले तो तू ओदियां तारीफां दे पुल बन जड़े। अच्छा यार हमजा, मैं ग्रुप दे विच सारे हवाले सेंड कर छड़े जे भाई, चेक कर लिया जी। ठीक हो गया जी। मैं लिया ही पढ़ रहा सी, बड़े मजे का टॉपिक है, हस हस के मैं अच्छा जिस बदवावां दित्तियां ने ना कुरान दी आयतां पढ़ के ना ओदे तर्जमे ठोके मैनूं लाम होए ने। ओए तौबा तौबा। अच्छा मैं कुछ तहकीकत कीतियां ने, ओ जरा पढ़ लई कि ओने इल्मे बलागत नाल ताल्लुक रखदियां ने। यह चीज़ां ओ अगर इल्मे बलागत तेनू आंदा है तो ठीक है, नहीं ते ए इल्मी गुफ्तगू है कि अरबी दा एक जुमला वो इंज नहीं सी है। अगर इंज हुंदा तो फिर वो फसीहो बलीग जुमला बनना। समझ आई कि नहीं? जिवें उन्हें एक लफ्ज बोले अल मखफिया, मां मुआरिफी हा अल मखफिया। अल मखफिया अरबी दे विच शाज है। समझ आई कि नहीं? बिल्कुल शाज है। बल्कि अल मखफिया की जगह खुफिया अगर ए लफ्ज आंदा ना तो यह ज्यादा बलीग है। यह हुण इल्मी गलती है, एक उलमा नूं गल समझ आएगी, आम बंदे की समझ नहीं है। समझ आई कि नहीं कोई? अच्छा भाई ठीक हो गया, नाल कमेंट भी लिख देता है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा भाई साहिबान, बराड़ नूं एंड करिए भाई। दोस्तों से गुजारिश है कि ऐलान मैं हर बराड़ के अंदर ही कर रहा हूँ। आजज की 3 नई किताबें मुरतब हो गई हैं और बहुत इल्मी मवाद इंशाअल्लाह ताला। बड़ी मेहनत उनके ऊपर की है हमने, आपके लिए बड़ी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो किताबें अब छपवा के भाई तकसीम करनी है। अब देखें माशाल्लाह 64-65 बंदे बैठे हैं, इनमें से एक बंदा भी वो छपवा सकता है। अल्लाह ने जिसको हिम्मत और तौफीक दी है। तो 3 किताबें हैं और कादियानी अकायद और कादियानी तौहीद
और मिर्जा चूड़ा, ये 3 किताबें इनको छपवाना है भाई। कुछ दोस्तों ने हमसे राब्ता किया है और लेकिन पैसे उन्होंने जमा करवाए तो हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि हम उससे एक किताब भी छपवा सके। वो हम दरमियान में फंस गए। तो अब इंतजार है कि कम से कम एक जिल्द के पैसे भी मुकम्मल हो जाएं, तो उसको तो फिर किसी किनारे पर तो लगाए ना हम। तो आप हजरात मेहरबानी फरमाएं, जिसको अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक दी है तो वो राब्ता कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो मैंने बता ही दिया है, दोबारा कोई बंदा लिख दे नीचे, नदीम साहब या हमजा मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दे, या मेरे टिकटॉक के पर्सनल के ऊपर ही राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? तो या व्हाट्सएप पे राब्ता कर ले। हाँ, 0324 744 8814 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे राब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह आपके जान माल की खैर फरमाए, आपके रिज़्क़े लाल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, किसी का दीन बच जाएगा, ईमान बच जाएगा, वो जन्नत में जाने से बच जाएगा, आपके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सदका जारिया है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी एक किताब के छपने में 6 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, तो अगर 6 लाख एक बंदे ने लगाया, एक किताब की छपवाई में 6 लाख एक बंदे में ने लगाया और 1000 कापी हमने बनवाई, वो 1000 कापी 1000 बंदे तक गई, उनमें से सिर्फ एक कादियानी मुसलमान हो गया, सिर्फ एक आपके लिए वो 6 लाख कोई शय ही को नहीं, कोई शय, समझ आई कि नहीं? कोई शय नहीं। आप इस चीज को समझिए, लोगों के दीन और ईमान को बचाइए भाई, लोगों के दीन और ईमान को बचाइए। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक रुवायत है जिसका मफहूम ये है कि कुर्बे क़यामत में जो दीन है ना, दीन वो दिरहम और दिनार के जरिए फैले। वो वक्त आ गया, यकीन जाने। अब हम किसी को प्रिंटिंग प्रेस पे जाके उसको कहते हैं यार ये किताब छाप दो, क्या वो फ्री छापेगा? बताए, उसने पैसे मांगने हैं भाई, पैसे दो, मेरी रोजी रोटी का मसला है, मेरी दुकान है ये, वो फ्री काम नहीं करे। तो वो दौर आ गया। साहिबान बहुत शुक्रिया जी, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक आजज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें। और किताब की छपवाई के अंदर भी आप सारे दोस्त शामिल हों भाई, लाजमी तौर पे शामिल हों, कोई बंदा पीछे ना रहे। हमारे बड़े बड़े प्यारे अपने दोस्त ही हमारे बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं, जो बड़े अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, बड़ा नवाजा है, तो वो ही अगर हमारे साथ तामुन कर दें तो हम ये किताब कब की छपवा ली होनी थी। तो मेहरबानी फरमाए, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी बराड़ ख़त्म करने लगा हूँ, इंशाल्लाह फिर नई बराड़ के साथ नए मौजू के साथ जल्द मिलते हैं। रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।